બારડોલીમાં ભાજપના ઉમેદવાર પ્રભુ વસાવાની સતત ત્રીજી વાર જીત। પ્રભુ વસાવાએ લોકોનો આભાર માન્યો તો લોકો માટે વધુ સારા કાર્યો કરવાની નેમ વ્યક્ત કરી। આજે ત્રીજી વખતની હેટ્રિક મારી બારડોલી લોકસભાના તમામ મતદાર ભાઈ બહેનો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓની મહેનત થકી આજે મને પરિણામ 2.5 લાખ કરતાં વધારે લીડનું મને સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। ત્યારે અગાઉની બંને લોકસભા કરતાં આ વખતની લીડમાં સારો એવો વધારો કાર્યકર્તાએ કરાવ્યો છે। ત્યારે આ જીતનો શ્રેય મારા રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ, પ્રદેશનું નેતૃત્વ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને આપું છું અને એમને અભિનંદન પાઠવું છું। 2024ના પરિણામ બાદ આજે શેર બજારમાં તેજી। ચૂંટણી પરિણામ બાદ માર્કેટમાં સારી રિકવરી થઈ। નિફ્ટી ઓપનિંગ 90 પોઈન્ટ પ્લસ અને સેન્સેક્સ 600 પોઈન્ટ પ્લસ। સંવાદદાતા દીપિકા જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। દીપિકા, શેર બજારમાં આજે તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, એટલે રોકાણકારોને હવે થોડો હાશકારો થયો હશે। બિલકુલ દીપા, કારણ કે શુક્રવારે તેજી અને ત્યારબાદ ગઈકાલે જે પ્રકારે બજાર તૂટ્યું તેને કારણે ખૂબ જ ચિંતાનો વિષય બની ચૂક્યો હતો કે આજનું બજાર કેવું રહેશે। જો કે પોઝિટિવિટી સાથે આજે બજાર ખુલ્યું છે। નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં ઉછાળો, પરંતુ એટલો હજુ રિકવરી હજુ એટલી નથી આવી। મારી સાથે જયદેવભાઈ ચુડાસમા છે કે જેઓ સ્ટોક એક્સપર્ટ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। શું કહેશો જયદેવભાઈ, ખાસ કરીને બજાર આજનું છે તે કેવું રહેશે? નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં હજુ કેટલો ઉછાળો આવી શકે તેમ છે કે પછી બજાર ડાઉન રહેશે? બિલકુલ, ગઈકાલે ભારતીય શેરબજારમાં જે રીતનો ઘટાડો જોવા મળ્યો તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ એક જ હતું કે જે રીતે એક્ઝિટ પોલના પરિણામ આવ્યા અને તે પછી ભારતીય શેરબજારમાં એક જબરજસ્ત તેજી જોવા મળી હતી અને તરત જ બીજા દિવસે એક્ઝિટ પોલથી વિરુદ્ધનું માહોલ જોવા મળ્યો અને જે પરિણામ આવ્યું તે એક્ઝિટ પોલ કરતાં સદંતર જુદું જ જોવા મળ્યું। તો તેનું જ એક નેગેટિવ રિફ્લેક્શન ગઈકાલે ભારતીય શેરબજારમાં જોવા મળ્યું હતું, પણ આજે ભારતીય શેરબજારમાં માઇનોર રિકવરી જોવા મળી છે, કારણ કે બજારનો કોન્ફિડન્સ છે કે ત્રીજી ટર્મમાં પણ સરકાર બનશે, પણ એક પાતળી સરસાઈથી બનશે અને તેને લઈ અને ભારતીય શેરબજારમાં થોડીક તેજી જોવા મળી। આ સાથે જ બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે ગુજરાતના ચોમાસા અંગે। ચોમાસું ગુજરાતથી માત્ર 540 કિલોમીટર દૂર છે। 2 દિવસમાં મહારાષ્ટ્રમાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે। મુંબઈમાં ઘણા ભાગોમાં વરસાદ શરૂ। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો થોડા દિવસમાં એન્ટ્રી અહીં જોવા મળશે। હાલમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, તો 2 દિવસમાં મહારાષ્ટ્રમાં વિધિવત રીતે ચોમાસાનો આરંભ। મુંબઈમાં ઘણા ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો થોડા દિવસોમાં એન્ટ્રી થશે અને અત્યારથી જ અસરો શરૂ થઈ ચૂકી છે। તો હવે થોડા જ દિવસો બાદ તમને ચોમાસાની એન્ટ્રી જોવા મળશે। ગરમીથી રાહત મળશે, કારણ કે આ વખતે જે ગરમીએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા તેનાથી તમામ નાગરિકો પરેશાન, ત્રસ્ત જોવા મળ્યા હતા। સહયોગી લખમણ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। લખમણ, કેટલા દિવસોમાં ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી? જી દીપા, બિલકુલ અત્યારે ખેડૂતો માટે ખૂબ સારા સમાચાર એ મળી રહ્યા છે કે ચોમાસું ગુજરાતથી માત્ર 540 કિલોમીટર દૂર છે, મહારાષ્ટ્ર ઉપર પહોંચી ગયું છે। ગોવામાં ગઈકાલે જ એન્ટ્રી કરી દીધી હતી અને હવામાન વિભાગનું અનુમાન એવું છે કે આગામી 2 ચોમાસું મહારાષ્ટ્રમાં એન્ટ્રી કરશે અને મહારાષ્ટ્રમાં ચોમાસું બેસી ગયા બાદ દક્ષિણ ગુજરાતથી ચોમાસાની શરૂઆત થતી હોય છે। એટલે ખેડૂતો માટે ખૂબ સારા સમાચાર છે, ખૂબ આનંદના સમાચાર છે કે આ વખતે સમય કરતા કદાચ વહેલું પણ આવી શકે છે ચોમાસું, અથવા સમયસર, મતલબ ચોમાસું મોડું નહીં થાય, વાવેતરમાં મોડું નહીં થાય અને ખેડૂતોએ જે સારા ઉત્પાદનની આશ રાખે છે ચોમાસામાં નહીં થાય તો આશા રહેતી હોય છે ખેડૂતોની ફરી કદાચ ટૂંકા સમયમાં હવે ગુજરાતમાં રહી શકે છે। દીપક, આભાર લખમણ જાણકારી આપવા માટે। તો માત્ર 540 કિલોમીટર દૂર છે ચોમાસું અને હવે 2 થી 3 દિવસમાં વિધિવત રીતે ગુજરાતમાં પણ એન્ટ્રી જોવા મળી શકે છે। જો કે મહારાષ્ટ્રમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે અને મુંબઈમાં તો ઘણા ભાગોમાં વરસાદની પણ શરૂઆત। દક્ષિણ ગુજરાતમાં અસરો વર્તાઈ રહી છે, એટલે અનુમાન છે કે થોડા દિવસોમાં જ ચોમાસાની વિધિવત રીતે એન્ટ્રી થઈ જશે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને ત્યારબાદ આખા ગુજરાતમાં પણ આ જ પ્રકારે વરસાદની શરૂઆત થશે। ગરમીથી લોકોને ખાસ કરીને રાહત મળશે।
વલસાડ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આજે પલટો આવ્યો હતો। વહેલી સવારે વલસાડ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ ખાબક્યો। જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું। વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે સવારે અમી છાંટણા થતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી અને લોકોએ ગરમીથી રાહત મળી હતી। તો નવસારી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો। નવસારી જિલ્લાની પૂર્વ પટ્ટીમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા। ગણદેવી બિલીમોરા વિસ્તારના કેટલાક ગામોમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો। મહારાષ્ટ્રમાં 2 દિવસમાં ચોમાસું બેસી શકે છે, જો કે તે પહેલા જ અસર જોવા મળી રહી છે। મુંબઈમાં આજે ઘણા ભાગોમાં હળવો વરસાદ શરૂ થયો। ખાસ કરીને બોરીવલી, કાંદીવલી, મલાડ, जोगेश्वरी, गोरेगांव, नायगांव, वसई, भाईदर, मीरा रोड, दहीसर में सवारे हळवो वरसाद थयो हतो। નો જનાદેશ સ્પષ્ટ છે। ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને ઉભરી છે। ભાજપને 240 તો એનડીએને 292 બેઠકો મળી। દિલ્હીમાં આજે એનડીએની બેઠક મળશે। આ મહત્વની બેઠકનું આયોજન ગુજરાતના જીતેલા 25 સાંસદો દિલ્હી રવાના થશે। ભાજપના વિજેતાઓ આજે બેઠકમાં હાજર રહેશે। પીએમએ સતત ત્રીજી વાર એનડીએ પર વિશ્વાસ બદલ જનતા જનાર્દનનો આભાર માન્યો। ત્રીજા કાર્યકાળમાં મોટા નિર્ણયનો નવો અધ્યાય લખાશે। ભાજપ મુખ્યાલય પર જીતના જશ્ન માટે પહોંચેલા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમારી સામે વિકસિત ભારતનો એક સંકલ્પ છે। તેમણે કહ્યું ત્રીજા કાર્યકાળમાં દેશમાં મોટા નિર્ણય લેવા માટે એક નવો અધ્યાય લખાશે। खटाखट रिजल्ट बाद हवे फटाफट कोनी सरकार बनशे तेनी पर सौनी नजर मंडायेली छे। भाजप देशनी सौथी मोटी पार्टी बनी छे तो कांग्रेसे पण हवे सरकार बनाववा दौड़ लगावी छे। चूंटणी परिणाम बाद एन फैक्टर पर सौनी नजर मंडाई छे। नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार अने नायडू आ त्रणेय पर सौनी नजर छे। आ वखतना जनादेशमां नीतीश कुमार अने चंद्रबाबू नायडू हवे किंग मेकरनी भूमिकामां आव्या छे, जेमां नीतीश कुमारनी जेडीयूने 14 अने चंद्रबाबू नायडूनी 16 બેઠકો મળી છે। બે 2024ના જનાદેશમાં ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી બની, પરંતુ પૂર્ણ બહુમત નથી મળી। જ્યાં 2 વાર સુધી સતત ભાજપને પોતાના જ દમ પર બહુમત મળ્યું હતું, ત્યાં આ વખતે ઇન્ડિયા ગઠબંધનને પણ તક મળી છે। 2019માં જ્યાં કોંગ્રેસ વિપક્ષની ભૂમિકાની પાર્ટી સુધી પણ નહોતી પહોંચી શકી, ત્યાં 2024ના પરિણામમાં 100 બેઠકો સાથે બીજી સૌથી મોટી પાર્ટી બની છે। જો કે એનડીએ 300 પારને પણ નથી કરી શકી, જેને લઈને 100 બેઠકો જીતનારી કોંગ્રેસે પણ કેન્દ્રમાં સરકાર બનાવવા દોડધામ શરૂ કરી છે। संवाददाता पवन गौर जुड़ाई गया है हमारी साथ। पवन, 400 के पार का जो दावा किया गया था वो दावा तो सफल नहीं होता दिख रहा है अब तक, और अभी एनडीए में किस तरह की गतिविधियां आप देख पा रहे हैं? एन फैक्टर बहुत बड़ा उभर के सामने आ रहा है। देखिए, जिस तरह से कल परिणाम आया उसमें बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे ही जो परिणाम जब आने लगा तो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उन्होंने तमाम जो एनडीए के जो सहयोगी दल थे उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की गई, चंद्रबाबू नायडू के साथ फोन पर बातचीत की गई, जो हम पार्टी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं उनसे फोन पर बातचीत की गई, और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल है उन सबसे फोन पर बातचीत कर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि एनडीए के जो तमाम जो सहयोगी दल हैं वो सब एकजुट हैं, और इसीलिए आज एनडीए के घटक दलों की बैठक शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है। उस बैठक के अंदर तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी कि एनडीए एकजुट है। और वहीं उस संभवतः एनडीए के घटक दलों की बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया जाएगा, और उसके बाद में बहुत जल्दी ही प्रधानमंत्री नई सरकार का दावा पेश कर सकते हैं।
जैसे कि राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 9 तारीख तक यानी 9 जून तक जो है वो राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर। तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत जल्दी नई सरकार को लेकर किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम बैठकों का दौर जारी है। आज तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात उनके आवास पर होगी और तमाम दल बैठकर एक किस तरह से सरकार चलानी है उन सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। पवन, अभी जो संजोग बन रहा है, अभी जो स्थिति बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये झटपट सरकार बनाने का जो दावा पेश किया जाना है एनडीए की तरफ से, वो एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी प्रक्रिया? देखिए, संभवतः कयास यही लगाए जा रहे हैं, चूंकि राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक यह है कि वो 9 जून तक वहां किसी भी तरह के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो विजिटर्स जो वहां जाते हैं घूमने राष्ट्रपति भवन, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। उसका कारण यही बताया गया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी करनी है, इसलिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। 240 के आसपास सीटें बीजेपी को मिली हैं, तो बस थोड़ी सी सीटों से बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने से रह गई है उसको लेकर। लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, 290-91 सीटें एनडीए के पास आई हैं, तो ऐसे में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। वहीं एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, जयंत चौधरी हो, उन सब ने अपना समर्थन जो है वो एनडीए को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाने को तैयार है। हमारा पूरा समर्थन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए है, यानी कि अपने गठबंधन में प्रतिबद्धता उन्होंने जताई है। तो कहीं भी कोई शक और शुबा की गुंजाइश बचती ही नहीं है कि कोई गठबंधन का कोई सहयोगी है, कहीं नाराज है या कहीं और किसी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी से बातचीत करके कहीं और जाने की संभावना बन जाए। तो फिलहाल की स्थिति जो है वो एनडीए पर्याप्त बहुमत के साथ में सरकार बनाने का जल्द ही दावा पेश कर देगा। पवन, जो इंडिया गठबंधन है वो क्या एनडीए गठबंधन में सेंधमारी करने की कोशिशें कर रहा है? उसके लिए कुछ जानकारी आपको मिल पा रही हो? क्योंकि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि नीतीश अब किसके, इस तरह से तंज भी कसे जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर, लेकिन हालांकि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बहुत कम है। टोटल मिला के अगर बात करें 230-31 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने जीत दर्ज किया। हालांकि शाम को 6 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि हमारा जो अगला कदम जो होगा वो तमाम जो गठबंधन के सहयोगी है उनसे बातचीत करके होगा, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में होगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि नंबर्स जो चाहिए हैं उसमें बहुत पीछे हैं, कहीं ना कहीं अगर एकाध दल चला भी जाता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क एनडीए को पड़ना नहीं है, क्योंकि तमाम अन्य दलों के साथ एनडीए की भी बातचीत चल रही है। जो अदर्स जो हैं उनके साथ भी एनडीए की बातचीत चल रही है। तो ऐसे में एनडीए को जो है बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में, लेकिन जो एनडीए के सहयोगी जो दल भी हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूती अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज्यादा नंबर्स की जरूरत है नहीं। तो फिलहाल जो है वो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कल आपने शाम को प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार का तीसरा कार्यकाल जल्दी शुरू होने वाला है। तो उनका एक संकेत साफ है, तमाम एनडीए के सहयोगी के साथ बातचीत हो चुकी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि वो शरद पवार जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं वापस अपनी तरफ लाने के लिए, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम है। दोनों ही नेताओं ने एनडीए को और प्रधानमंत्री को अपना समर्थन की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में फिलहाल जो है निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल जो है एनडीए की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है। पवन, कार्यकर्ताओं को भी शुक्रिया अदा किया था प्रधानमंत्री ने। मतलब जो सीटें घटी हैं उनका असर कहीं ना कहीं अंदर खाने कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, इस वजह से ही उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे ट्वीट किया। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से उम्मीद जो बीजेपी कर रही थी, तकरीबन खुद को अकेले में बीजेपी 300 के आसपास मान के चल रही थी और एनडीए को तकरीबन 350 के आसपास मान के चल रही थी। लेकिन जब परिणाम जो है उसके अनुकूल नहीं आए, उसके हिसाब से नहीं आए और बीजेपी अकेले खुद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकामयाब साबित हुई, तो उसके बाद में तमाम जो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा का भाव होने लगा। हालांकि एनडीए जो है सरकार बना रही है और बीजेपी जो है वो खुद से बहुत सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बना रही है, खुद उड़ीसा में
सरकार बना रही है, आंध्र प्रदेश में एनडीए के गठबंधन के रूप में सरकार में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि जितनी लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, तो निराशा का भाव कार्यकर्ताओं में पैदा हो रहा था। उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, को तमाम नेताओं की तरफ से संदेश आना शुरू हुआ, ट्वीट्स करना शुरू हुआ। तो वहां से कहीं ना कहीं एक कोशिश रही कि ये जो है बहुत बड़ा जनादेश है, तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि जो फैसला जनता का आया है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो समीक्षा करने की जरूरत है, उसमें देखने की जरूरत है कहां गलतियां हुई। उत्तर प्रदेश से खासकर बहुत बड़ी उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक बीजेपी को दिया है, तो उसमें क्या कारण रहे, कहां कहां खामियां रही, किस तरह से उसको मजबूत किया जाना है, किस तरह से खामियों को दूर किया जाना है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो एक यही संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए जो है फिर से सरकार बनाने जा रहा है, तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहीं भी कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। पवन, काउंटिंग के बाद जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, लेकिन अब सवाल ये कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि 5 केंद्रीय मंत्री जिनकी हार हो चुकी है, हरियाणा में नुकसान, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी उम्मीदें वहां से थी, वहां पे हार, कम सीटें, एसपी यहां पे बाजी मारती हुई दिखी। फिर पश्चिम बंगाल आते हैं तो वहां पे भी नुकसान हुआ, महाराष्ट्र राजस्थान में भी नुकसान हुआ, गुजरात गृह राज्य उसमें भी 1 सीट गई। तो अब इन सब समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में चेहरों को पसंद किया जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर जब मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है तो उसमें आपके काम का एक पैरामीटर तो होता ही है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ आपका क्षेत्रीय समीकरण भी तैयार करना पड़ता है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के परिणाम आए, राजस्थान के परिणाम आए, महाराष्ट्र के परिणाम आए, पश्चिम बंगाल के परिणाम आए, खुद कई सारे और राज्यों के जो परिणाम आए, तो उसके हिसाब से एक सामाजिक और क्षेत्रीय जो इक्वेशन है वो तैयार करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि कई सारे मंत्री जो हैं इस समय वो चुनाव भी हार गए हैं, उनकी जगह पे कौन नए मंत्री होने चाहिए, उनका सामाजिक समीकरण कितना फिट बैठता है, उनका क्षेत्रीय समीकरण कितना फिट बैठता है। तो इन सारे विषयों को लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू होगा। आज एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी चर्चा होगी कि किस दल को कितने मंत्रालय देने हैं, किस दल को कौन कौन सा मंत्रालय देना है, इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अपने पास कितने मंत्रालय रखेगी, कौन कौन से मंत्रालय रखेगी और कौन कौन से मंत्रालय रखेगी, तो कौन किस किस क्षेत्र से, किस किस राज्य से आने वाले किस सांसद को कौन सा मंत्री दिया जा सकता है, उन सब विषयों को लेकर अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर बहुत बड़ी चर्चा होनी है। बीजेपी जो नेतृत्व है वो लगातार मंथन का दौर शुरू हो गया है। कल ही आपने देखा परिणाम आने से ठीक पहले तकरीबन 4 घंटे जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक हुई। उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो जब अपना संबोधन के बाद में तकरीबन आधे घंटे फिर से बीजेपी मुख्यालय में बैठे और चारों बड़े नेताओं की फिर से बैठक हुई। उसके बाद में आज एनडीए नेताओं की बैठक है और उसके बाद में कई सारी बैठकें और होनी है। तो उन सब बैठकों के दौर से चलते ही लगातार मंथन किया जाएगा और अगले 3 से 4 दिनों के अंदर स्थिति काफी तौर पर स्पष्ट हो जाएगी कि एनडीए के घटक दलों से कौन कौन मंत्री बन रहा है, एनडीए के घटक दलों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, उसके साथ साथ बीजेपी से कौन कौन से मंत्री बनेंगे और बीजेपी अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखने जा रही है। तो ये स्थिति जो है अगले 3 से 4 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगी। शुक्रिया पवन सब जानकारी के लिए। તો 3 અલગ અલગ તસવીરો હવે તમને દર્શાવી રહ્યા છીએ। પ્રધાનમંત્રી મોદી જેમની આજે મહત્વની બેઠક, એનડીએની આ મહત્વની બેઠક, ગઈકાલે જે રુઝાન આવ્યા અને ત્યારબાદ જે પરિણામ આવ્યા તેણે ખરેખર તમામ ઉમેદવારોના ધબકારા વધારી દીધા હતા અને આજે એનડીએની આ બેઠક, બીજી તરફ નજર છે એન ફેક્ટર પર નીતિશ કુમાર અને ચંદ્રબાબુ નાયડુ આ બંને કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં છે, તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેવાની છે। પછી એનડીએ ગઠબંધન હોય કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન, સાંજે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની પણ બેઠક મળવાની છે, એટલે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં પણ દોડધામ જોવા મળી રહી છે। રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।